हाँ, अभी ये सारी चीजों के पीछे हमारी जो टीम काम करती है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी। टीम मिरल के पीछे हम 5 सदस्य हैं, वो पांचों के नाम मैं बता दूंगी आपको। विमल बालकृष्ण भट्ट, he is an engineer by profession and a practicing astrologer since last many years. उनके फादर के टाइम से वो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और आई थिंक उनके ब्लड में ही एस्ट्रोलॉजी रन करती है. So he is a practicing astrologer and he has expertise with Vedic astrology, Vastu, numerology, Tantra and Lal Kitab. So he has having expertise with all the occult fields. Again, Ankita Khare is our next member. She is an HR manager by profession and she's practicing occultism, that is Lama Fera, healer, Reiki grandmaster, tarot, Folkshire, angel, spellcaster, and many other subconscious clearing modalities since last 10 years. We have Priya Mittal here. She is here from Nairobi and she has been a marketing communicator expert for more than 21 years and she has worked with various MNCs and she has been practicing healing modalities like Lama Fera, Reiki, Angel, and NLP coaching, and she is a very good consultant. Since last many years, she is into this field also of spirituality, and otherwise she is a marketing professional, but she is into spirituality since last many years. So, and one more member is Mr. Naveen Srivastav. Unfortunately he is not here with us just now because he had some other priorities. So he is also a professor by profession. Thank you. This was a brief introduction of Miral team, and I would like to invite Mr. Joy Banerjee, who has been waiting here since long. So Mr. Joy Banerjee is here. Thank you. Sure, Dhavalji, we will share the contact details of the Miral team also. But for now, let's go on with Mr. Joy Banerjee's session. Joy Banerjee, he is an Acharya who started his journey in astrology about 15 years back. By profession, he's an IT consultant in an MNC in Delhi. He's a teacher of KP astrology, Lal Kitab, and many more. And he's here to definitely elevate lives with different modalities that he practices. Today, he will talk upon Shani Dev and KP. I very warmly welcome Joy Banerjee ji. Thank you very much. Thank you very much for asking me here. And first, I would like to thank Beryl Foundation. They are doing very good job. I was not aware, but today I was getting into it, and I'm able to understand how difficult it is to help others and taking out time from your busy schedule. But still, it is a वेरी गुड एफर्ट. तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत प्रोत्साहित करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग अपने डेली शेड्यूल में से भी इतना वक्त निकाल के लोगों की मदद कर रहे हैं. और ये नए साल में ये बहुत ही मैं तो कहूँगा ये और भी लोगों तक पहुँचानी चाहिए जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं. तो मीता मैम, मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस नए साल में, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन. और जितने भी स्पीकर्स हैं उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाला और मिरल फाउंडेशन को समय दिया. और इस सेशन को हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे जितना अच्छा हो सके उतने तरह से हम कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से. तो आज मैं जो भी बात करने वाला हूँ शनिदेव के बारे में बात करने वाला हूँ. और जब भी सेशन शुरू हो रहा था, कल की बात थी, तो मैंने जब टाइम देखा तो मुझे टाइम दिया गया 1:45. और शनिदेव डिले का कारक है. और मैंने पहले ही अपने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि मेरा जो सेशन है वो लेट ही शुरू होने वाला है, क्योंकि कोई भी कार्य, मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगा, कोई भी कार्य आप शुरू करना चाहेंगे ना, तो 45 से 55 के बीच में कभी मत शुरू कीजिए. वो कार्य हमेशा ही डिले होना है. ये प्रैक्टिकली आप चेक करके देखना. बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है ज्योतिष का, और हर कोई कर सकता है. जब भी घड़ी में 45 से 55 हो, आप कोई भी नया काम नहीं शुरू करना है. ठीक है. तो मैंने एक छोटा सा पीपीटी बनाया है. तो आई डोंट नो आई हैव द प्रिविलेज टू शेयर माय स्क्रीन और नॉट. कैन आई? Yes, definitely. Okay. Yes, you can share. Okay, thank you.
तो आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। और शनिदेव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, और मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि हम इसको देख पाए। तो शनिदेव जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। लेकिन लोगों को शनिदेव के बारे में क्या पता है, क्या वो सोचते हैं, ये थोड़ा जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आप लोगों से भी कंट्रीब्यूशन चाहूंगा, जो भी आप लोगों के दिमाग में आएगा तो आप जरूर सवाल में पूछे, जो भी सेशन का रहेगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि क्या शनिदेव को आप पसंद करते हैं? डू यू लाइक सैटर्न? तो ज्यादातर मैं जो लोगों से बात करता हूँ वो यही बोलते हैं कि वो तो हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि शनिदेव को हर इंसान डरता है। ये नहीं पता शनिदेव अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा दोनों ही रिजल्ट दे सकते हैं। वो क्यों दे सकते हैं, आज के सेशन में आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। तो आप ये माने, शनिदेव दूसरे ग्रहों की तरह ही अच्छे और प्रभावी ग्रह हैं, और बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी शनिदेव भी दे सकते हैं। लेकिन शनिदेव का काम क्या है, हम इस सेशन में पूरी तरह से समझेंगे और आगे मैं बताता जाऊंगा। तो शायद आप लोगों की रुचि भी शनिदेव के ऊपर बढ़े। केपी कई लोगों को शायद नहीं पता, या जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष का ही एक अंग है। आप केपी ज्योतिष माने, कृष्णमूर्ति पद्धति, ये भी वैसा ही प्रभावी है जैसे वैदिक ज्योतिष है, लेकिन इसमें देखने का और समझने का नजरिया थोड़ा अलग है। कैसे, वो मैं समझाता हूं। जैसे कि कोई भी एक ग्रह, अगर मैं कहूं कोई भी ग्रह, उस ग्रह की जो भी पावर होती है वो हमारे तक एक नक्षत्र के थ्रू पहुंचती है। तो केपी ज्योतिष ये मानता है जो नक्षत्र होता है वो बहुत प्रभावी होता है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के साथ रिजल्ट को जोड़ के हमारे तक पहुंचाता है। तो केपी ज्योतिष में नक्षत्र का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। हम ये मानते हैं कि नक्षत्र इज मोर पावरफुल देन द प्लैनेट। तो कोई भी घटना आपके जीवन में हो रही है तो ग्रह अकेला नहीं देता, अपने नक्षत्र के साथ वो रिजल्ट्स देता है। तो आप ये माने कि जब भी हम किसी बात करते हैं कि ये ग्रह पता नहीं हमारी जिंदगी में कैसे रिजल्ट देगा, तो आप ये समझें कोई भी एक ग्रह अकेला रिजल्ट नहीं देता। ऐसे ही कोई भी एक भाव या जो भी हाउस कहते हैं, एक साथ कभी भी रिजल्ट नहीं देते। मतलब 2 या 3 मिलकर वो रिजल्ट देते हैं। वैसे ही हम केपी ज्योतिष में ये मानते हैं नक्षत्र जो होता है वो प्लैनेट से ज्यादा पावरफुल होता है, और एक प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में, मतलब जिस भी नक्षत्र पे वो होगा उस नक्षत्र के हिसाब से रिजल्ट देगा। तो आज हम बात करेंगे केपी और शनि, या शनिदेव को हम कृष्णमूर्ति पद्धति में कैसे देख सकते हैं और कैसे हम विचार करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि शनिदेव के पास 3 नक्षत्र है, पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। तो ये 3 नक्षत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी है। जैसे जैसे शनिदेव जिस भी ग्रह के साथ जुड़ेंगे, चाहे वो नक्षत्र के रूप में हो या जैसे कि हम केपी में कहते हैं सब लॉर्ड या उपनक्षत्र के रूप में, तो वो अपने फल जरूर देंगे। अब शनि के कैसे फल होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम किसी भी ग्रह की बात करते हैं उसके मित्र ग्रह की भी बात हमें करनी चाहिए और उनके बारे में भी समझना चाहिए। तो शनि के आप मित्र ग्रह माने बुध, शुक्र और राहु। ठीक है, तो यहाँ पे हम बुध, शुक्र, राहु को शनि के मित्र मानेंगे, और शनि के जो एनिमी प्लैनेट तो वो सूर्य, चंद्र और मंगल। ठीक है, तो इसका मतलब शनि जब भी अपनी मित्र ग्रह के नक्षत्र में आएगा वो अपने प्रभाव ज्यादा अच्छे देगा, और जब भी शनि अपने ही एनिमी प्लैनेट के नक्षत्र में आएगा तो वो प्रॉब्लम देगा। अब ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि सूर्य के नक्षत्र में जब शनि आए तब कोई दिक्कत आ सकती है। अगर मैं कहूं कि अगर शनि चंद्र के नक्षत्र में हो तब भी कोई दिक्कत आ सकती है। अगर कहें कि देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ा योग है जिसे कहते हैं पुनर्फू योग, या उसको आप योग कहें या उसको आप दोष कहें, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो पुनर्फू होता है मतलब क्या है, जब भी शनि का
चंद्र के साथ कनेक्शन हो। वो कैसे देखना है वो मैं बताता हूं। आपकी कुंडली में अगर शनि चंद्र की राशि में हो, या शनि चंद्र के नक्षत्र में हो, या वाइस वर्षा चंद्र शनि के नक्षत्र में हो, या चंद्र शनि की राशि में हो, या ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हो कुंडली में, जो कि हम राशि चार्ट से देखते हैं, उस केस में हम मानेंगे पुनर्भू योग है। तो पुनर्भू योग होगा तो क्या होगा? आपके लाइफ में डिलेज आएंगे कोई भी घटना के लिए। अब कौन सी घटना होगी? जिस घटना के लिए वो शनि जुड़ेगा, उस घटना के लिए वहां पे आपको डिलेज दिखेंगे। किसी के भी कुंडली में पुनर्भू योग अगर हो रहा है, जैसे कि अगर शनि चंद्र से जुड़ रहा है किसी भी वजह से, चंद्रमा क्या है? मन है, तो उस इंसान का मन भारी रहेगा। अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, जब भी शनि उससे जुड़ेगा तो ऐसा इंसान, चंद्रमा क्या है? सोच है, तो ओवर थिंकिंग करने वाला होगा। आप अपने कुंडली में देखें, अगर चंद्रमा शनि से जुड़ रहा होगा तो ऐसा इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है, तो ओवर थिंकिंग ये कॉम्बिनेशन जरूर देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वाई सैटर्न इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना जरूरी है। आप ये समझें, हम पूरे जीवन में, मैं एक छोटी सी कुंडली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। तो आप सोचे कि पूरे जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो भी कार्य करने का उद्देश्य क्या है, उसका लाभ। ठीक है, अब ये टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा हो रहा है तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो आप ये सोचें, यहाँ पे पहला घर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें ये बोला गया है कि 9वां घर जो है वो भाग्य का है। मतलब जो भी हम कार्य करते हैं वो हमें भाग्य से मिलता है। लेकिन हम एक चीज मिस कर जाते हैं, क्या हर चीज भाग्य से है? तो वो भी देख लेते हैं। अगर हर चीज भाग्य से होता तो भाग्य के बाद सीधा हमारा लाभ स्थान आना चाहिए था, जो कि 11वां है। और भाग्य के बाद अगला स्थान किसका है? वो कर्म का है, 10 नंबर। कर्म का नंबर और लाभ का नंबर, वो दोनों ही शनि देव ओन करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वाई सैटर्न इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का जो फल है वो दोनों ही शनिदेव दे रहे हैं। तो अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर आप बुरा करेंगे तो आपको बुरा फल मिलेंगे। तो आप शनिदेव को क्यों बोलते हैं कि शनिदेव बुरा फल देते हैं? कर्म हमारे हैं, फल वो दे रहे हैं, क्योंकि उनको तो श्री विष्णु ने बोला कि उनका कार्य ये है, क्योंकि ग्रह को चालना कौन कर रहे हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि भाई आपकी ये ड्यूटी है। तो कर्म सिर्फ ये नहीं होता कि जो आपने इस जीवन में किया। कर्म का जो चक्र है वो आत्मा के साथ चलता है। जैसे कि हम कहते हैं सूर्य, सूर्य आत्मा का कारक है। तो जो कर्म जो चल रहा है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो हम कहते हैं कि 5वां घर जैसे पूर्व पुण्य का होता है। ठीक है, लेकिन पूर्व पुण्य अगर 5वां घर है तो पूर्व पाप क्या है? बता सकते हैं कौन सा घर है? तो मैं तो ये कहूंगा, जो भी पूर्व कर्म के फल हैं, चाहे वो पुण्य हो चाहे वो पाप हो, वो 5वें घर से ही आपको मिलेगा। 5वां घर सूर्य देवता का है। कालपुरुष की कुंडली में 5वां घर सूर्य देवता है, वो आत्मा है। तो आत्मा कर्म की बोझ को लेके चलता है। तो इसलिए आप ये माने कि 5वां घर पॉजिटिव वर्क का फल भी है और नेगेटिव वर्क का फल भी है। और इस जीवन में आप जो कार्य कर रहे हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका भाग्य है। इसका मतलब अगर हम अच्छा कार्य करें, जैसे कि मिराल फाउंडेशन इज डूइंग वेरी गुड जॉब, तो उसका जो फल है वो शनिदेव जरूर अच्छा ही देंगे। तो इसलिए सैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। शनिदेव के पास कर्म कराने की भी शक्ति है और कर्म के फल देने की भी शक्ति है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं शनिदेव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट एंड शुड बी मोस्ट लवेबल प्लैनेट एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज कर्मा इज कंट्रोल्ड बाय सैटर्न? मैं ये कहूंगा बिल्कुल सही बात है कि जो कर्मा है इट इज बीन कंट्रोल्ड बाय सैटर्न, क्योंकि शनिदेव
और गुरु, ये दोनों हर जगह मौजूद हैं। आप जब भी कोई कार्य करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमने जीवन में कोई कार्य कर लिया और कोई नहीं देख रहा, मैं ये चुपके से ये काम कर लेता हूं। तो आप ये समझें, जो गुरु है जुपिटर, दैट इज एयर, तो हवा हर जगह है। और शनि देव इस काल, समय, समय जो है वो हर टाइम आपके साथ साथ चल रहा है। तो इसलिए आपके जो कर्म के साक्षी हैं वो ये ग्रह पूरी तरह से होते हैं। तो इसलिए हम अगर जिंदगी में दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, अच्छा इंसान बने, तो ऑटोमेटिकली हमें सैटर्न का अच्छे से अच्छा ही फल मिलेगा। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने लाइफ में कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कत देती हैं, तो उसके बारे में भी समझेंगे, उसको हम कैसे अच्छा या बेहतर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये बात होती है कि हम अपनी कुंडली में ये कैसे देखें कि शनि देव अच्छा है या बुरे बैठे हैं, है ना? तो कई बार लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ये समझें कि आपके कौन से जीवन की घटना के लिए आप चाहते हैं देखना कि ये शनिदेव अच्छा है या बुरा है। जरूरी नहीं है, अगर आप कहें कि करियर के लिए, अगर जैसे छठे घर का, जैसे हम छठे घर से जॉब देखते हैं, नौकरी देखते हैं, अगर छठे घर का उपनक्षत्र स्वामी शनिदेव अगर होते हैं, अगर छठे घर का सबलॉर्ड अगर शनिदेव होते हैं, तो ऐसे केस में जातक को क्या दिक्कत आएगी या किस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में अगर हम देखें, ऐसे केस में जातक को जिंदगी भर मेहनत करते रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि मेहनत का कार्य है। चाहे आपकी दशाएं क्यों ना चल रही हो शनिदेव की, तो उस केस में भी आप यही देखेंगे, जब भी शनिदेव की दशा चलेगी, उस जातक को जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और रिजल्ट भी कम मिल रहा है। शनिदेव ये चाहते हैं कि वो इंसान को कर्म योगी बनाए, बिजी करे। तो इंसान जितना बिजी रहेगा उतना ही लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। कई बार जीवन में ये भी होता है कि सैटर्न का जो ट्रांजिट है उसको हम कहते हैं साढ़े साती। अभी जैसे आज कुछ बात भी हो रही थी, भाई हमारी साढ़े साती आ गई। थोड़ी देर पहले मैडम ने भी शनि के बारे में ही चर्चा करी। तो हमें पता है कि शनि, शनि डिले का कारक है, शनि डिफिकल्टी का कारक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि डिफिकल्टी आपको हमेशा प्रॉब्लम ही दे। इंसान जो भी प्रोग्रेस होता है लाइफ में, वो डिफिकल्टी हर्डल्स को पार करने के बाद ही होता है। तो इसलिए हर वक्त डिफिकल्टी इज नॉट बैड। हर चीज का देखने का नजरिया होता है। कई बार कोई चीज हम कहते हैं जल्दबाजी मत करो, हमें चोट लग सकती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर चीज अपने समय पे ही सही लगती है। तो काल और उसका कंट्रोल शनिदेव करते हैं। अब छोटे से फॉर्म में, ये सेशन बहुत ही छोटा रहेगा, तो इसलिए हम छोटे से फॉर्म में देखें कि अगर हम देखना चाहें शनिदेव हमारी कुंडली में अच्छा है या बुरा, अब राशि चार्ट में ये देखें, अगर आपका शनिदेव, जैसे कि एक एग्जांपल चार्ट ले लेते हैं, यहां पे मैं एक छोटा सा कुंडली बना लेता हूं ताकि आपको समझ आए। अब मान लेते हैं शनिदेव यहां बैठे हैं कुंडली में। आपको कुंभ राशि से शनिदेव के पोजीशन को काउंट करना है। यहां से अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर ये पोजीशन, फिर दोबारा शनिदेव से यहां से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन 3-11 का बनेगा, या जब भी ये कॉम्बिनेशन 5-9 का बनेगा, तब ये मान ले आपका शनिदेव आपके लिए अच्छे फल देगा। जैसे कि अब हम शनिदेव को यहां बिठा लेते हैं। तो यहां से मैं कुंभ राशि को काउंट करूंगा 1 2 3 4।
तो इसका मतलब ये 4-10 का संबंध हुआ। अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका मतलब 4-10 का संबंध जो है वो अच्छा नहीं है। तो अगर आपकी कुंडली में 3-11 या 5-9 का संबंध आएगा तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं शनि देव आपको अच्छा ही फल देंगे, चाहे वो जितने भी बुरे बैठे हो। इस तरह से आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं। अगर समय ज्यादा होगा तो मैं और डिटेल में बता पाऊंगा, लेकिन इसको हम इतना ही कवर करते हैं। हाउ टू इंप्रूव सैटर्न। अब ये बात होती है कि भाई शनि देव को हम कैसे इंप्रूव करें। शनि देव ये चाहते हैं हर चीज समय पे हो, तो एक छोटा सा उपाय ही समझ लेते हैं। क्यों ना हम एक डायरी मेंटेन कर लें, उसमें अगले दिन का जो भी कार्य है वो हम समय के साथ लिख लें। अगर वैसा हम कर लें तो ऑटोमेटिकली जब हम लिख रहे हैं, जितना हम लिखेंगे, जितना हम अच्छा बोलेंगे, हमारा बुध अच्छा होगा। और जितना हम लिखे हुए पे फॉलो करेंगे समय को, काल को, उतना ही शनि बेहतर होता जाएगा। मतलब अगर मैंने कल के लिए डिफाइन किया और टाइम को वैल्यू दिया, तो उतना ही शनि देव बेहतर होते जाएंगे आपकी कुंडली में। शनि के जो भी लोग होते हैं, हम आजकल ये समझते हैं कि भाई रेमेडी कैसे करें। क्या रेमेडी हमेशा खर्चा करके ही हो सकती है? क्या रेमेडी हम किसी की मदद करके भी कर सकते हैं? शनि देव जो भी लोग गरीब हैं, आपके घर में काम करते हैं, आपके घर में जो सफाई करते हैं, जो कूड़ा ले जाता वो नहीं, वो राहु, जो सफाई करते हैं, जो आपके आसपास लोग गरीब घूम रहे हैं, जो मजदूर कर रहे हैं, मतलब मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, पसीना टपकाते हैं, वो सब शनि के ही एजेंट है। ओल्ड एज सैटर्न, आजकल हम लोग अपने ही माता पिता को देख नहीं पाते और चाहते हैं शनि देव हमारे लिए अच्छे से अच्छा फल दें। तो आप ये सोचें, जब कोई ओल्ड एज में पहुंच रहा है तो वो इंसान कहीं ना कहीं शनि का ही रूप है। तो आपको शनि देव को खुशी और अच्छा फल के लिए चाहिए तो आप उन ओल्ड एज लोगों की मदद करें। जितना आप ओल्ड लोगों की मदद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, फिजिकल सेवा मैं कह रहा हूं, उतनी ही बेहतर शनि देव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। क्योंकि शनि देव मेहनत का काम है, और फिजिकली जब तक आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो शनि देव को पता ही नहीं चलेगा। तो जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, कई लोग कहते हैं भाई अपने घर के नौकर को ही बुरा भला बोलते हैं। क्यों? वो तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके पैसे ले रहे हैं। तो आप उनसे बर्ताव अच्छे रखें। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, कम से कम आप उनके बर्ताव अच्छा रखें। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं शनि हमारे ही जो नेगेटिव एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कम होगी। ऑब्वियसली देखिए, डोनेशन एक फॉर्म है रेमेडी का, लेकिन अगर शनि रिलेटेड लोगों से हम संबंध अच्छे कर लें तो ऐसे केस में हमारे सैटर्न के इफेक्ट बेहतर होने लगेंगे। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, कोई भी चीज मैजिक नहीं है। तो आप ये माने, चीजें बदलने में समय लगता है लेकिन बदलेगा जरूर। अगर हम कोई चीज ठान ले तो वो चीज 100 नहीं 1000% अचीवेबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे जब भी हम बात कर रहे थे 7.5, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मून एंड सैटर्न। अभी हमने बात किया 7.5, अभी हमने बात करी पुनर्पू योग की, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट बताऊंगा जो शायद हम में से बहुत कम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल वे में जब हम एनालिसिस करते हैं। आप ये देखें, गोचर में थोड़ा बहुत नॉलेज, आप मैं भी जो चीज बता रहा हूं ना उसमें थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज आपको होना चाहिए। गोचर मतलब ट्रांजिट। शनि देव जब भी चंद्रमा से 12वां, या चंद्रमा जिस राशि में है उसमें, और चंद्रमा जिस राशि है में है उसके ठीक बाद वाले घर में, अगर वहां उसमें ट्रांजिट में चल रहा हो तो ऐसे केस में आप माने 7.5 आप पे लगी हुई है या 7.5 आपकी चल रही है। लेकिन 7.5 से भी
सबसे डिफिकल्ट पोजीशन आपके जीवन काल में कौन सा आने वाला है वो मैं अभी बता सकता हूं, और उसी चीज को आप रिवर्स कैलकुलेशन में भी निकाल सकते हो कि पिछले वो टाइम पे जब शनि उस पोजीशन पे आए थे, आपके जीवन में भी कोई ना कोई डिफिकल्टी आई होगी। विद इन 5 मिनट्स क्या करना है, चंद्रमा से गोचर में, मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां है वहां से जब भी 5वां शनि आएगा ट्रांजिट करते हुए गोचर में घूमते घूमते, शनिदेव 2.5 साल एक राशि में टिकते हैं। तो इसका मतलब एक राशि में जब भी वो 2.5 साल रहते हैं, वो गोचर करते करते जैसे ही आपके नेटल के, आपकी कुंडली के, आपके राशि के चंद्रमा से ठीक 5वां वो गोचर में आ जाएंगे, वो 2.5 साल आपके जिंदगी के सबसे टफेस्ट पीरियड रहेगा। तो उसकी तैयारी क्यों ना हम पहले से ही कर लें। तो जब भी वो समय आएगा, वो समय हमें ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने वाला नहीं रहेगा, वो समय सबसे डिफिकल्ट पीरियड रहेगा, 7.5 से भी ज्यादा। इसको आप प्रैक्टिकली चेक करें। मैं जो चीज बोल रहा हूं वो आप भरोसा मत कीजिए, उसको आप प्रैक्टिकली पहले चेक करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली चेक नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं, कितने इफेक्टिव होते हैं जीवन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सैटर्न और उसका ट्रांजिट मैंने आपको बता दिया, लेकिन ट्रांजिट में हमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट देखनी चाहिए। क्या? सैटर्न की 3 दृष्टियां होती हैं। तो शनि देव जहां बैठते हैं, ये ध्यान रखना, शनि देव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं। शनि देव जहां देखेंगे, शनिदेव जहां देखेंगे वहां कमी करेंगे। मतलब शनिदेव का एस्पेक्ट 3 होते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है शनिदेव अपने से जहां वो बैठे रहेंगे, 3rd हाउस पे एस्पेक्ट करते हैं। फिर शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से 7th में एस्पेक्ट करते हैं। फिर शनिदेव जहां बैठते हैं वहां से 10th में एस्पेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ट्रांजिट में जब वो गोचर करते हुए आपके 5वें में आएंगे, तो वहां से जो दृष्टि 3rd जाएगी, जिस भी भाव में जा रही है या जिस भी हाउस में जा रहा है, और 7 में और 10वें में, उन घरों के रिलेटेड, उन रिलेशनों को रिलेटेड आपके लाइफ में दिक्कतें आने वाली हैं, जो कि सिर्फ आप 5 मिनट में निकाल सकते हो अपनी कुंडली को देखकर। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पहले से पता हो सकता है कि हाँ, इस रिलेशन से, इस लोगों से आपको दिक्कत आ सकती है, तो पहले ही हम क्यों ना उनसे संबंध अच्छे कर लें, ताकि संबंध अच्छे रहेंगे तो जब वो समय आएगा वो याद करेंगे, हाँ उस वक्त उन्होंने मेरी मदद करी थी, उस वक्त वो ही इंसान खड़ा था हमारे सामने। देखिए, जीवन काल में अप एंड डाउन जरूर रहता है, लेकिन आप ये चीज समझें, मुसीबत में जो आपके सामने खड़ा रहेगा उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो इसलिए शनिदेव यही कहते हैं, चाहे सिचुएशन जिंदगी में कैसी भी हो, आप दूसरों की मदद करना बिल्कुल ना छोड़ें, कर्म करना ना छोड़ें, अच्छा कर्म। आप अच्छा करेंगे वही घूम के आपके ऊपर आएगा, क्योंकि जब भी आप के अच्छे कर्म की वजह से किसी के मुखमंडल पे खुशी आती है, हंसी आती है, संतुष्टि आती है, वो जो अंदर से अनुभव है, उसका जो आशीर्वाद है, वही काम करता है, वही असली रेमेडी है। तो इसलिए आप लोग समझे कि क्या पावरफुल है, क्या लोगों की मदद करना पावरफुल है, या सच में पैसा लुटाना पावरफुल है। ठीक है, अब ये बात आती है, कई लोग पूछेंगे कि शनि का जो जेमस्टोन है क्या हम पहने या हमें पहनना चाहिए। तो इसके लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में एक प्रॉपर सिस्टम है। जिंदगी में जरूरी नहीं है, मैं सच बता रहा हूं, कृष्णमूर्ति पद्धति में ऐसा है कि जिंदगी में जरूरी नहीं है, कोई ना कोई ऐसा स्टोन आपके लिए होगा ही होगा जो आपके लिए फायदा करे। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा स्टोन ही नहीं बना जो आपके लिए पॉजिटिव हो आपकी कुंडली के हिसाब से। तो शनि देव अगर किसी अच्छे घर से जुड़ जाए, मतलब क्या है, स्पेशली आज हम फाइनेंस की बात करते हैं, लोग भाई पैसा कैसे बढ़ेगा। पहले जमाने में जब ज्योतिष था, मैं मानता हूं ज्योतिष को क्यों यूज किया जाता था, लोग ये जानना चाहते हैं, गुरुजी ये बताइए हम इस जीवन में आए किस लिए हैं, क्या कार्य करने के लिए। लेकिन आज बोलते हैं भाई बैंक बैलेंस कैसे बढ़ेगा वो बताओ पहले, है ना। लेकिन
असली मंतव्य क्या है ज्योतिष का? असली मंतव्य यह है कि आप इस जीवन में किस कार्य के लिए आए हैं, ऊपर वाले ने आपको किस काम के लिए भेजा है, क्या करने के लिए भेजा है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष और भी बहुत सारी चीजें बता सकता है, गणना कर सकता है, तो क्यों ना हम ये जान ले कि हमारे पैसे कैसे बढ़ेंगे। तो वो भी एक छोटा सा टेक्निक मैं बता देता हूं आपको कि आप कैसे देखें कि कौन सा वार आपके लिए सबसे बढ़िया है। आप एक छोटा सा एक्सेल शीट बना लीजिए, एक बहुत ही फैंटास्टिक सिस्टम बता रहा हूं, वो भी प्रैक्टिकल वे ऑफ टेस्टिंग कि कौन सा ग्रह है आपके लिए बढ़िया है और कौन से ग्रह का जेमस्टोन आप पहन सकते हो। ऑल्दो आज सिर्फ सैटर्न में बात करना था, लेकिन छोटा सा टेक्निक है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप एक एक्सेल शीट बनाएं, उसमें ये लिखिए समय कि इस वक्त पे मेरे पास मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए, वो टाइम लिख लीजिए बस। और उस टाइम पे जाके ये देखिए कि चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी क्या था। जिस दिन आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हुए और उस दिन जो चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी था, वो ग्रह आपको पैसे देगा, उसका स्टोन आप पहन लीजिए। और ये पैटर्न आप सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स चेक करें और आपको देखने मिलेगा कि वो ग्रह कितनी बार रिपीट हो रहा है। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। कई लोग बोलेंगे भाई हम तो एक जगह काम करते हैं, सैलरी एक ही दिन आती है, वो भी चेक करो। गारंटी के साथ कहता हूं वो नहीं ग्रहों में से कोई ना कोई आ रहा होगा, क्योंकि Right. केपी एस्ट्रोलॉजी ऑलवेज गिव गारंटी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आपने लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है, आपने हाथ का भी छाप लगा दो, आपने बोल दिया तो वही होना है। ये मजा है एस्ट्रोलॉजी का। तो जेमस्टोन आपके लिए जो ग्रह आपके ट्रांजिट में देखो, आपको अगर पैसा इंपॉर्टेंस है तो सिर्फ वो देखो कि अगर उस दिन पैसे आ रहे हैं, नोट कर लो वो वक्त, वो समय, वो दिन। और चंद्रमा का नक्षत्र देखो और आपकी कुंडली में वो 2, 6, 10, 11 ले रहा होगा। प्रैक्टिकली हम चेक कर लेंगे, जिसके पास कुंडली नहीं है वो भी चेक कर सकता है। ये ज्योतिष है, ज्योतिष का कोई भी बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, राइट। जितना ज्योतिष इंटरेस्टिंग होगा, जितनी बाउंड्रीज नहीं होंगी, जितना खुला होगा सबके लिए, उतना ही ज्योतिष का मजा आएगा, ज्योतिष करने में भी इंटरेस्ट आएगा लोगों को। इसलिए प्रैक्टिकली टेस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इंटरेस्ट। तो अब ये बात होती है भाई, घर के अंदर भी शनिदेव के कई आइटम होते हैं, ये भी तो जान ले कौन कौन सी चीजें हैं। अब जैसे पीछे मैडम है, मैडम के पीछे घड़ी है, वो घड़ी है, घड़ी में भी 3 ग्रह हैं। काल, जैसे कि हमने बात करी, शनि। शनि जो है समय को तो दिखा रहा है, लेकिन वो घड़ी गोल है, तो उसमें बुध भी है। और शनि का जो डायल है वो व्हाइट है, तो दैट इज मून। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न, मून एंड मरकरी। तो जो भी चीज गोल है उसमें बुध का कंट्रोल है। छंद में हो गया, लेकिन सच्ची बात है। तो आप ये समझें कि घर के अंदर जो भी, अब अपने आप में से किसी ने भी कुंभ राशि देखी होगी, वो क्या है, कलश। कई लोग ये भी कहते हैं भाई आपका पाप का घड़ा भरेगा ना, वो छलकेगा और गिरेगा, लेकिन वो घड़े में है क्या? कहीं ना कहीं वो पानी को दर्शा रहा है। मकर राशि, उसमें मगरमच्छ है, उसमें भी कहीं ना कहीं पानी ही है, क्योंकि मकर जो है वो कहीं ना कहीं पानी में ही रहता है। तो सूर्य का प्रकाश शनि देव जहां है वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो वहां पे जो पानी है फ्रोजन है। तो आपके घर में जो चीज फ्रीजिंग है ना, दैट इज सैटर्न, लाइक फ्रिज, एसी, दीज आर सैटर्न। इनमें शनि का प्रभाव है। डेड चीजें जैसे कि फ्लैश, वो सैटर्न है। फिश सैटर्न है। जूते सैटर्न है। अंधेरी जगह शनि। तो घर के अंदर जो चीजें लोहे की हैं, लेदर की हैं, लकड़ी की हैं, वो भी शनि है। क्योंकि देखिए, जब पेड़ है उसमें प्राण है, जब पेड़ को काट के लकड़ी बन गया, वो आपका फर्नीचर बन गया, दैट इज डेड। तो सैटर्न इज डेड। तो ऐसे ही घर पे कई सारी चीजें हैं जो शनि है, शनि का रूप है। हमें उन चीजों को समझना और जानना जरूरी भी है, क्योंकि सही जगह वास्तु के हिसाब से अगर चीज ना हो तो वास्तु में तोड़फोड़ नहीं करना, क्योंकि दीवारें जो है ना आपकी, वो शनि है। जितना आप तोड़फोड़ करोगे उतना ही आपके घर में शनि के नेगेटिव असर आएंगे। क्यों? कई बार हमें यह पता नहीं होता कि कौन सा हमारा
दशा चल रहा है, कौन सा वक्त चल रहा है, या लाल किताब में जैसे हम कहते हैं कि वर्षफल में शनि कहाँ है, राहु कहाँ है, ये हमें नहीं पता, तो तोड़ फोड़ क्यों करना? क्यों ना हम थोड़ी सी चीजें बदल दे अपने घर में और उसी से हमें लाभ मिल जाए। तो ये सारी पद्धतियां हैं हमारे ही भारत की, लेकिन हमें इसको आगे लेके जाना है, हमें इसको और टेस्ट करना है। जैसे कि मैं कह रहा हूं, जितना प्रैक्टिकली आप टेस्ट करेंगे उतना ही इंटरेस्टिंग होगा, उतना ही हम लोगों की मदद करेंगे। जितना हम लोगों की मदद करेंगे उतना ही शनिदेव हमें भी हेल्प करेंगे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो रेमेडीज क्या हो सकती है? रेमेडीज का मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको यही बताया कि शनि देव की जो रेमेडीज है, सिंपल एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। शनि देव क्या है? सरसों का तेल है। क्यों ना शनिदेव, हमने ये भी बताया कोई भी बूढ़े हैं, ओल्ड एज है, क्यों ना हमारे घर में जो भी ओल्ड एज है, थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ में लीजिए, उसको हाथ में मल लीजिए, हल्का सा गर्म हो जाए तो उनके टांगों के नीचे, क्योंकि जितने भी शरीर में जॉइंट्स है ना वो शनि है, तो टांगों के नीचे वहां पे आप उनके मालिश कीजिए रात को सूरज ढलने के बाद। तो वो भी एक बहुत बेहतरीन उपाय है, आप करके देखिए, तो उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। अब किसको कैसे करना है वो भी बता देता हूं। किसी का शनि अगर शुक्र के राशि में है तो क्यों ना बीवी के पैर में मालिश करें, कम से कम मार भी नहीं पड़ेगी, है ना? तो ऐसे उपाय से भी आपको फायदा 100% मिलेगा, आप करके देखें, उसके बाद आप दोबारा पूछें। आई एम डन। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। क्वेश्चंस में तो ऐसा है कि अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए हैं। हाँ नहीं, एक मिताजी, एक मिनट एक क्वेश्चन है ना यहाँ से मेरे पास आया था। शुड आई आस्क? यस यस। एक्चुअली आपने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया ना कि पैसे आने के टाइम पे समझो नक्षत्र देखे, वो टाइम एक्सेल शीट में नोट है, लेकिन एक बिंदु जी ने पूछा है जी, वही चीज अगर पैसे गए यानी फिर डेबिट हुए, वो उसके लिए भी हम ये कर सेम सकते वे। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। आप देखिए क्या करना है आपको, आप एक टाइम लिख दीजिए, मैं और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें। आपने क्या करना है, एक एक्सेल शीट बनाइए, सबसे पहले लिखिए डेट, उसके पहले लिखिए टाइम, और उसके पहले लिखिए गुड बैड और रिसीव्ड मनी। 3 तरह के फील्ड्स लिख लीजिए आप। तो जिस टाइम पे आप अच्छा फील कर रहे हो ना, वो भी टाइम पे आप लिख लो नाउ आई एम फीलिंग गुड। तो 2 महीने से इसको चेक कीजिए, और 2 महीने बाद आपके पास रिजल्ट होगा कि इस वक्त ये ग्रह मेरे को खर्चा करवा रहा है, ये ग्रह मेरे को खुशियां दे रहा है, ये ग्रह मेरे को पैसे दे रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ऐसे ही पता चल जाएगा प्रैक्टिकली, कोई कुंडली की जरूरत नहीं है, सिर्फ चंद्रमा के गोचर को देखना है, चंद्रमा के ट्रांजिट को देखना है, और कुछ नहीं। जी। अभी और एक दो क्वेश्चन है, शुड आई टेक मिताजी? मिताजी मैं ले लूं? अच्छा, ये जो आपने ये जो तेल जो गर्म करके जो लगाने को बोला था, वो मम्मी पापा के या फिर एजेड आदमी के तलवे में लगाने को बोला था? शनि जो है घुटने के नीचे का हिस्सा है, टांगे हैं वो। देखिए शनि जो रिजल्ट देता है वो राहु केतु के द्वारा रिजल्ट देता है, ठीक है? तो केतु के द्वारा जो भी उपाय किया जाएगा शनि का, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसलिए जो टांगे हैं ना, कमर के नीचे का हिस्सा, वो केतु है। तो इसलिए आप घुटने के नीचे ही सेवा करें। उसमें बड़ों के सामने हमारी जो स्थान है ना, वो उनके चरणों में ही है। तो आप ये माने कि वहां ही आप सेवा करें, वही सबसे अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप जब घुटने के नीचे कहते हैं, मतलब घुटने के पीछे या तलवा? टिपिकली लोग कई बार कहते हैं ना तलवे पे करना चाहिए, तो आपका आप क्या कहीं पे भी कर सकते हैं मैम, मैं यही कह रहा हूँ कि शनि देव जो है घुटने के नीचे है, टांग तक है। अब देखिए 12वां घर क्या है? 12वां घर फीट है। तो पहले जमाने जब हम छोटे थे ना, हमें बोला जाता जो भी बड़ा है उसके पैर छुओ, वो हमारा शिष्टाचार है, लेकिन वो है रेमेडी। लेकिन आज हम झुक नहीं पाते, आज हम घुटने तक ही पहुंचते हैं, उससे नीचे नहीं जा पाते, वो हमारी प्रॉब्लम है। पैरी पहना जी दूर से ही, है ना? लेकिन असलियत में क्या करना है, हमें पैर तक छूना है। जो बड़े हैं उनका सम्मान करना जरूरी है, और वो हमारे इसके लिए शिष्टाचार में जरूरी है। नहीं है कि उनकी राशि हमें पता हो या उनका इश्यू पता हो। अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो इट्स लाइक यूनिवर्सल, ऐसा नहीं कि इसका बिल्कुल कोई उल्टा असर हो।
नहीं कि नहीं भाई मैं पता तभी, नहीं कौन से हाँ चक्कर में सरसों करेक्ट, का तेल मर गया। हाँ या नहीं नहीं नहीं, देखिए ग्रेट। ये ऐसा उपाय है जिसमें किसी की सेवा करने से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना जिंदगी में कभी होगा, ना जिंदगी कभी किसी को कभी भी नहीं होगा। राइट राइट राइट। तो ऐसे थैंक यू। उपायों में कभी नुकसान नहीं होता। राइट। एक प्रश्न है यहाँ पे हरीश जी का, जी। हाउ डू यू इंटरप्रेट इफ सैटर्न इज इन द हाउस ऑफ सन इन 12th हाउस? देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति में हम इस तरह से प्रिडिक्शन नहीं करते, क्योंकि हर एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। अब जैसे आपने बताया सूर्य का राशि है ना, सूर्य के राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, या तो केतु, या तो शुक्र, या तो सूर्य। अब शनि जिसके भी नक्षत्र में होगा और वो ग्रह जहां होगा और शनि जहां जहां के फल ले रहा होगा, वो मिक्स रिजल्ट आएगा। तो इसलिए पूरी कुंडली को देखना जरूरी है कृष्णमूर्ति पद्धति में, तो हम ऐसे आंसर नहीं कर पाएंगे। सर बहुत सारी बधाइयां भी आ रही है कि आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। हेमल भाई, I think we have exceeded 100 limit. Shivale Dada is waiting outside. Please take him in. ओके हाँ, ओके 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 ओके, शिवाले दादाजी को मैं अंदर ले लेता हूँ। और I think he is also waiting. Please take him also. And एक और प्रश्न आया है हमारे पास। जी मैम बताइए। Saturn in second house in Aquarius Lagna, joint pain all the time. Please suggest a remedy. अब देखिए सेकंड हाउस में शनि है। सेकंड हाउस किस चीज का है? हमारे फैमिली का, हमारे फाइनेंसेस का, हमारे बातचीत का। देखिए इसका बहुत अच्छा एक रेमेडी बनता है, लेकिन वो रेमेडी डिफिकल्ट है आज के दिन में करना। फिर भी मैं एक रेमेडी बता देता हूँ, 2 रेमेडी बताऊंगा, क्योंकि एक जो मैं बताऊंगा वो कर नहीं पाओगे आप, और दूसरा जो है आप कर सकते हो। पहला रेमेडी ये है, जो कि शनि जब भी दूसरा हो वैसा इंसान अगर शनिवार के दिन मौन व्रत रखे तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मिलता है। जैसे कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है, कोई बताएगा? गांधी जी। गांधी जी। गांधी जी के सेकंड हाउस में सैटर्न था, और हमें पता है कि उन्होंने मौन व्रत कितनी बार किया। तो उसका इफेक्ट 100 नहीं 1000% अच्छा मिलना है। मिरल वालों का तो कभी ठीक नहीं होगा, हमारे तो सेशन ही सैटरडे नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन दूसरा उपाय बताता हूँ। अब शनि जब भी दूसरे में आए, अगर आपको जैसे जॉइंट पेन हो रहे हैं, तो आप ये देखें कि शनि किसके नक्षत्र में भी है। ये देखो, ये डिटेल में देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसे मैं एक सिंपल उपाय बता देता हूँ। शनि जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, गरीब लोग हैं, तो आप शनिवार को क्या करें, मैंने बताया शनि के उपाय ना आप केतु के द्वारा करें। केतु क्या है? 3 चीजें, या तो 3 तरह की दाल लें, या 2 दाल 1 चावल लें, उनको मिला के खिचड़ी बनाएं। देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि का उपाय करना है। अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो कच्चा 3 चीजें लें, चावल, 2 तरह की दाल, उनको लेके, दूसरा घर मंदिर का भी है, मंदिर में जाके जो भी शनि रिलेटेड इंसान दिख रहे हैं उनको बिठा के आप भोजन कराएं, और उसके बाद जो वो बचेगा उसका पोर्शन आप खुद भी खाएं। ये आप महीने में 1 बार करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। जॉय बनर्जी जी, अभी हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। आई वुड लाइक यू टू वेट, आई मीन हम दूसरा एक स्पीकर ले लेते हैं, बिकॉज शी नीड्स टू गो। हाँ हाँ बिल्कुल, सारे क्वेश्चंस लेती हूँ आपके। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली शनि के ऊपर था, लोगों की बहुत सारी क्वेरी है। बहुत है। इट विल टेक नियरली 1.5 hour मोर। और आपने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन और बहुत बढ़ गई है। हाँ, तो मैं एक स्पीकर को ले लेती हूँ, एंड देन वी विल अगेन स्टार्ट। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। थैंक यू वेरी मच।